जाना था शूटिंग के बाद, लेकिन पकड़ सर आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं हम आएंगे, और सारे अपना शूटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। प्रोविज़न अच्छा बनाया हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो हमारे खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ। दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ डेडिकेटेड टू यू ऑल। अपने साई के हमारे जितने ऑफिसर्स हैं, दे हैव वर्क वेरी हार्ड इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक टाइम। वी डू नॉट स्टॉप द वर्क। सो माई डीप सेंस ऑफ अप्रिशिएशन टू माई ओन टीम। हमारे एजेंसी जो कंस्ट्रक्शन एजेंसी है, उनको वेबकोस है, अच्छा बनाया। वेबकोस वैसे हमारे साथ पुराना वो है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का काफ़ी काम करते हैं। तो वेबकोस का इंजीनियर्स एंड टेक्निकल टीम को भी धन्यवाद, अच्छा बिल्डिंग बनाया। और अंत में जब हम कोई अच्छा बनाता है तो अच्छा नतीजा उम्मीद रखते हैं। तो माय बेस्ट विशेस to all the players for upcoming tournaments, for your future. You all are champions. I'm very proud of you, and for you as a sports minister, I will be always there to support you in anything in your endeavor to achieve your dream. And if you have any problem, you can come to me anytime. Thank you very much. Thank you, sir, for your kind words. I'm sure your words will act as a catalyst for our athletes. I now request our administrator of the shooting range, Shri Satyajit Sankit sir, to give the thank you note. So this shooting range has finally found a home for the athletes, and that is much awaited. See, for any sports academy, you must have the facility for accommodation, for hostel. Without that, any sports academy is not complete, because some of the players, some of the selected players for the national camp, they have to stay in hostel. If a player commutes from a distance, it has a bearing on the performance. So by fulfilling the construction of the boys and girls hostel, I think we have added a new dimension to this Karni Singh sports shooting range. And this will really benefit our shooters. India is today one of the top shooting nation in the world. आपको मालूम है कि अभी शूटिंग में इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री में माना जाता है। और हमने अभी 15 क्वालिफाई कर चुके हैं, 15 क्वार्टर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इसके लिए हॉस्टल होना बहुत ज़रूरी था। अभी हॉस्टल बन गए हैं और सारा फैसिलिटी भी हम देंगे, क्योंकि हमारा ये कोशिश है कि बेस्ट हमारा एकोमोडेशन फैसिलिटीज़, खाने पीने का, न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंटमेंट हो गया, और शूटिंग के लिए और बाकी स्पोर्ट्स के लिए हर एक जो है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हम मुआवजा करवाएंगे, फैसिलिटी को अवेलेबल करवाएंगे। ये हमारा निर्णय है। नरेंद्र मोदी जी का सरकार खेल और खिलाड़ी को प्राथमिकता देते हुए हर संभव चीज़ पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। और आज का ये एक टॉप क्लास हॉस्टल इनॉग्रेशन हुआ है करनी सिंह शूटिंग रेंज का दिल्ली में, और ये बहुत सुंदर जगह है और बहुत हाई क्वालिटी का शूटिंग रेंज है, और यह हॉस्टल भी बहुत अच्छा क्वालिटी का बना है। So the capital investment on the building and the stadiums and now the hostels. This has been your hallmark for last few years that you have come since you have come. Yes. Sports In minister. last And Northeast has in last 19 months alone, we have completed so many sports facilities which could not be done in decades. That shows the commitment of the Prime Minister. And we have not allowed the shortage of funds. Funds have never been the constraint in providing facilities to the shooters. So that is the level of the commitment Narendra Modi government has for the sports and sports persons. Sir, what are the plans of having tournaments? Actually, I should say the starting of the tournaments in our country. The tournament has started. The only thing we are asking for the calendar. Yes, sir. Because it's Olympic year and it might help our athletes to train well. See, for the competition, the dates and everything are to be finalized by the federations.
And for the national level, the national federation will decide. For the international event, the international sports federation will decide. I have to just give the support to the sports persons and the federation. They have to submit to the government the calendar, the training, and other requirement. And I don't want our players to suffer. So players must get opportunity to take part in the tournament. How long you will keep practicing? You have to participate in the competition. Competition will define how well you have prepared. So that is why I have asked all the sports federation to get the calendars of the international events as well as the national events. And we are providing all the support for any event, whether it's international event or national event. Now, we want more international event to happen in India. Some cash awards are pending for athletes. And I have already given direction. Our players' cash award or any incentive should not be kept pending. Some of the cases which were pending for a long time also have been cleared. I have raised the cash value also, and at the same time, some of the issues I am told, some of the athletes had approached me that some of the cash rewards are pending. Those will be cleared immediately. Sir, you have also had a good discussion with Milkha Singh ji, and you have promised him a very, very big No, I am promise. going to Chandigarh next month. I am going to Patiala. I am going to meet him. All legendary players, we have to respect them, we have to honor them, and we have to keep taking inspiration from them for the next generation. Milkha Singh ji, there are many more legendary sports persons which we have produced. We must always not forget them, and we must meet them, make them feel good that the country has not forgotten them. So one last question about the preparation of the Olympic athletes and the coaches they are there. No, they are Why doing has that been fine. going I'm on? very satisfied with the preparation. Our coaches are good now. We are doing the training for the coaches also. The coaches also require training. There's upgradation of the standard of the sports, the rules, the techniques. Sports science plays very important role these days. So you have to keep upgrading. I am right now satisfied with the performance of our coaches and the players. सर ये शूटिंग रेंज में पहली बार जैसा मंत्री जी ने बताया कि यहाँ पे आपने शूटर्स के लिए उनके लिए हॉस्टल्स बनाए एंड यू हैव स्पेशल हॉस्टल्स फॉर पीपल विद स्पेशल नीड्स एज वेल, और यहाँ के क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताएं, क्या फैसिलिटीज़ हैं? देखिए, शूटिंग रेंज एक सेक्लूडेड एरिया में है। यहाँ पे बच्चों की सबसे बड़ी डिमांड थी कि हमारे पास एक रेजिडेंशियल फैसिलिटी हो, चूँकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये वर्ल्ड क्लास है और ये विश्व का वन ऑफ द बेस्ट या बेस्ट कहा जाए तो उस तरह का रेंज है, इसका स्टेटस उस तरह का है। तो हमारे पास जो एक ही कमी थी वो हॉस्टल की थी, जो आज बन गया और उसका उद्घाटन अभी माननीय मंत्री जी ने किया। अब जो बच्चे हैं जिनको एकोमोडेशन की समस्या होती थी यहाँ ट्रेनिंग करते हुए, उन बच्चों को अब यहाँ रहने की सुविधा दी जाएगी। सर ये शूटिंग रेंज शहर से बहुत दूर है तो शायद ये फैसिलिटी होने से बहुत ज़्यादा उनको एक हेल्प मिलेगा। आपने कहा कि ये शूटिंग रेंज वर्ल्ड क्लास है। आई थिंक योर शूटर्स आर देमसेल्व्स वर्ल्ड क्लास, और वो तो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। यहाँ कई वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, अच्छे शूटर्स हैं। इनफैक्ट जितनी भी बड़ी प्रतियोगिताएं होती हैं विश्व में, भारत में जितने भी शूटर यहाँ से इंडियन टीम में सेलेक्ट होते हैं, उनका यहाँ से होकर ही वो गुजरते हैं। ग्रास रूट से लेके एलीट लेवल तक हम उनकी शूटिंग, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था करते हैं। यहाँ हमारे शूटिंग रेंज में ग्रास रूट लेवल से लेकर के एलीट लेवल तक के शूटर को सुविधा प्रदान करने की क्षमता इस रेंज के पास है। यहाँ की फैसिलिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे, कितने रूम्स हैं, क्या हैं, कैसे आपने इस प्लेस को ऑर्गेनाइज किया है जो यहाँ पे शूटर्स रहेंगे उनके लिए? दो चीज़ें आपने पूछी। एक पूछा जो फैसिलिटीज़ हमारी हैं, तो हमारे पास शूटिंग की सारी फैसिलिटी है। हमारे पास 10 मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर ट्रैप एंड स्कीट शॉटगन रेंज, कंपोजिट ट्रैप एंड स्कीट रेंज है, और हमारे पास सफिशिएंट पॉइंट्स हैं। जैसे हमारे 10 मीटर में 80 पॉइंट्स, उसी तरह 50 मीटर में 80 पॉइंट्स हैं। तो इसी तरह पॉइंट, इतने ज़्यादा शूटिंग पॉइंट्स हैं कि हम मैक्सिमम शूटर को केटर कर सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी है इतनी। प्लस हमारे पास एक फ़ाइनल रेंज है। फ़ाइनल रेंज किसी भी बड़ी प्रतियोगिता के होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है।
उसकी सुविधा भी हमारे पास है। तो हम कोई भी इंटरनेशनल इवेंट कराने के लिए किसी भी समय इस रेंज में सक्षम है। ये हुई हमारी ट्रेनिंग फैसिलिटी की बात। जहाँ तक हॉस्टल की बात है, इस हॉस्टल के बिल्डिंग के बारे में मैं ये बताऊं कि ये डबल बेडेड हॉस्टल है, सारे फुली एयर कंडीशन डबल बेडेड हॉस्टल, अटैच वॉशरूम है, और जो एक अच्छी फैसिलिटी एक हॉस्टल में होनी चाहिए वो इसमें है। बाकी इसको मेंटेन करने की जहाँ तक बात है, ये पूरा हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग इसको ऐसा मेंटेन करें कि बच्चे जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाहर खेलने जाएं तो उन्हें ये लगे कि हम उसी माहौल में हैं जिस माहौल में हमने ट्रेनिंग की थी और रहे थे। और मंत्री जी ने भी यही कहा कि हम 3 स्टार फैसिलिटीज़ तो मिनिमम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। कितने रूम्स हैं? रूम्स हमारे पास 81 हैं, लेकिन डबल बेडेड जैसा हमने कहा तो 162 बेडेड हो जाता है। लेकिन कुछ रूम्स हैं जिसकी उपयोगिता उसके हिसाब से होगी। तो एक बार में हम एक पसे, अगर अग्रवाल साहब सहमत हो, तो 160 के आसपास बच्चे एक बार में यहाँ आराम से रह सकते हैं, और उनकी केटरिंग की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे है। हमारे पास जो केटरिंग की व्यवस्था है वो ऐसी है कि हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फूड दे सकते हैं। हमारे पास जो शूटिंग का स्पेसिफिक फूड होगा उसके लिए हमारे पास स्पेशलाइज्ड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे पास शेफ़ हैं, असिस्टेंट शेफ़, एक पूरी टीम है उनकी। तो हमारा कैटरिंग फाइन डाइनिंग जो है वो काफ़ी उच्च कोटि का है। तो इसीलिए यहाँ बच्चों को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसका हम प्रयास कर रहे हैं, जो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाकी जगहों पे मिलती हैं। वेबकॉस इज़ द कंस्ट्रक्शन कंपनी जो इस पूरे प्रोजेक्ट को डिलीवर किया। सर, वेबकॉस के लिए पहला चैलेंज क्या था और आपके मैंडेट क्या थे पहले जब आप लोगों ने SAI या मंत्री जी से आप लोगों की जब बात हुई थी कि इस प्रोजेक्ट पे काम करना है? एंड मंत्री जी वॉज अप्रिशिएटिंग दैट यू वर्कड ऑल थ्रू आउट द कोविड पीरियड। उसको भी हैंडल करते हुए आप लोगों ने फाइनली ये प्रोजेक्ट डिलीवर किया है, आज उद्घाटन था। एक्चुअली वेबकॉस इज़ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और वेबकॉस जितने भी साई के सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हम लोग 10 सेंटर्स में साई के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। एक हमारे एक हॉस्टल था, और करीब 9-10 हॉस्टल और बना रहे हैं डिफरेंट प्लेसेस। बंगलौर है, पटियाला है, आपके यहाँ तक कि त्रिवेंद्रम, इम्फाल में भी हम दूर जाके हॉस्टल बना रहे हैं साई के। और साई भी इसमें काफ़ी सारा हमारा सहयोग कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए साई के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। और मिनिस्टर साहब ने भी काफ़ी बोला है कि बच्चों को जितने भी स्पोर्ट्स फील्ड के, नॉट फॉर शूटिंग वाले बच्चे, जो एथलेटिक ट्रैक्स बन रहे हैं, हॉकी फील्ड्स बन रही हैं, बच्चों के लिए काफ़ी कुछ हो रहा है। और ये सब मंत्री जी के सहयोग से हो रहा है। और साई ने भी वेबकॉस पे बिलीव किया। और वेबकॉस एक्चुअली वाटर पावर कंसल्टेंसी थी। हम लोग कंस्ट्रक्शन में आए, फिर हमने सारे सर के प्रोजेक्ट्स हम चाहते हैं टाइमली डिलीवर कर पाएँ, क्वालिटी अच्छी दे पाएँ, उसकी सारी कोशिश हमारी तरफ से रहती है। जो शूटिंग में आज इसलिए
कर आ रहे हैं तो उनका के लिए आएंगे और सारे अपना शूटिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। सर मैं बातचीत धन्यवाद देना। Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.